Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start up with a new chapter that is directing, means direction. Okay. Uh, in this chapter we are going to see the directing and its importance and elements. So let's start. Directing concept. In management, after having the done planning, organizing and the staffing, directing begin. Once you done with your all this function, planning, organizing, staffing, there is a need of the direction. Why? Because till here our business policy objective was we already set up in organization. For completing all this thing, whatever we require resources, that also we have arranged in organizing, and for making the active means all this thing we have appointed the staff also. But do you think without direction the staff will able to do the work? No, not at all. Okay, so for that we need to give the direction to the employees how well they are going to achieve the objective policy and planning and all. Okay, so let's see. Now the important question that arise is as how to enter human machineries of the enterprise will move. Means सिंपल है, जैसे आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो आप अपनी स्टडी स्टार्टअप करते हो, बट आपको लगता है बिना टीचर के डायरेक्शन के आपको प्रॉपर स्टडी करने का तरीका पता होगा? नहीं पता चल पाता है, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। वैसे ही एम्प्लॉय को ये मालूम है काम कैसे कौन कौन से काम करने हैं, लेकिन कैसे करने इसका डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, the answer to all this question is inherent in the fourth function that management, that is directing. In directing, people posted at a different posted are so influenced that they start moving toward their work automatically and finally contribute to the accomplishment of the objective of the enterprises. Means they doing the activities of the organization after getting the direction according to the standards, so that they can able to achieve the objectives. It is important to distinguish between two almost similar words, managing and directing. Managing is a wide concept apart from the directing, the function like planning, organizing and staffing. See, generally these two concepts are go together, managing and directing. Managing, it is overall function of management, but the directing is only one function, that is direction to the employee. Okay, so let's see. On the other hand, the directing is limited concept and is only part of the managing. Let's see what is the meaning of directing. Directing refers to instructing, guiding, communicating, inspiring people so that the objective can be achieved. सिंपल मीनिंग में डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉय के टारगेट होते हैं, गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको अचीव करने के लिए किस रास्ते को होकर गुजरना होगा, उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टिंग। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट इन एक्शन। सिंपल है, डायरेक्शन के बाद में रियलिटी में एक्टिविटी स्टार्टअप होती है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में सिर्फ आपको फर्स्ट वन करना है, नोट्सोटोनल वाला। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट। सिंपल, व्हाट दे सेड, whatever you decided in the planning and organizing, that only you are going to practically execute at directing. Okay, now next of directing. Based on the above discussion, the following point are to be points stand out regarding the nature and the features of the direction. First one, directing initiate the action after completing the staffing function of management. The important question that arises is as to how the entire human machinery will move. entire machinery, human machinery इसका मतलब क्या मालूम है? यहाँ पे एम्प्लॉय और मशीनरीज की बात नहीं हो रही। एम्प्लॉय खुद किस मूव में डायरेक्शन लेंगे, यानी जैसे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट हो गए, उनको पता है कि वो किस पोस्ट पे है, ठीक है, उनके डिपार्टमेंट का काम क्या है, लेकिन कैसे काम करना है ये उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा काम करना है ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के बगैर स्टाफिंग भी कुछ हद तक पैसिव में ही रहता है, क्योंकि एम्प्लॉय आकर के ऑर्गेनाइजेशन में खड़े बट उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, तो कैसे करेंगे, है कि नहीं? सो इसीलिए डायरेक्शन कंपलसरी। तो क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन इनिशिएट द एक्शन। इनिशिएट मतलब डायरेक्शन से ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला स्टेप ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय मूव करते हैं। The answer to this question is to inherit the directing function of management, while other function prepare the ground for action. It is initiative action, यानी कि जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? एक पिक्चर है। ठीक है, यहाँ ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, स्टाफिंग में हीरो हीरोइन आ गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एक्शन क्या करना है। ठीक है, तो वो चीज़ें कहाँ पे बताई जाती है? डायरेक्टिंग में। ठीक,
नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक अ प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब डायरेक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में नहीं होता, बल्कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। यानी कि जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, सिंपल मीनिंग है कहा जाए तो जहाँ जहाँ एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, लोअर लेवल हो या प्लेटफॉर्म वर्कर ही क्यों ना हो, हर एक जगह डायरेक्टिंग करना कंपलसरी है। ठीक है, directing is required at every level of management. The top level of management direct their subordinate who are the middle level manager. In the same manner, the middle level manager direct their subordinate who are in the supervisory level. Yani it has come from top to bottom. In that sequence only the direction also move. Clear? डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार कमांड देने के बाद ऑटोमेटिक काम अपने आप होता नहीं रहता। आप टीवी देखते हो, उसमें कई चैनल होते हैं ना, आपको लगता है कि टीवी जैसे हम रिमोट ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक चैनल चेंज होते हैं क्या? नहीं ना, जो चैनल आपको देखना है उतनी बार आपको रिमोट कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जब भी वो काम करते हैं तो एक बार डायरेक्शन दे दिए तो वो काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बार बार उनको डायरेक्शन देना है। ठीक है, तभी वो अपने काम को प्रॉपर वे में कर पाएंगे, इसीलिए कहा गया है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक, directing is a continuous process. The work of the manager is not merely accomplished by issuing the directions and instruction in once. He has to constantly review the work of his subordinate, guide them correctly, and also motivate them from time to time. He has to constantly ensure that the work is progressive as per the plan, and in case of any negative deviation, he has to take the corrective action. Simple है, टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, राइट है, तो वो डायरेक्शन है। लेकिन आपको लगता है कि वो सिर्फ पढ़ाते जाते नहीं, वो पढ़ाने के साथ साथ ये भी चेक करते हैं बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, बाय वे ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन आंसर, इंटरैक्टिंग विद द स्टूडेंट, टेकिंग करेक्ट द कॉपीज फॉर करेक्शन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या है, डायरेक्शन के पार्ट है। ठीक, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्शन कभी भी हायर अथॉरिटी से लोअर में आता है, ना कि लोअर से हायर पे जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्ट। The importance of the direction is highlighted through the following fact. First, initiative action. First of all तो ये क्या है, initiative action, यानी कंपनी में काम चालू होने का यही फर्स्ट स्टेप है, क्या, डायरेक्टिंग। The employees are appointed up to the first three function of management, यानी फर्स्ट थ्री प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, यहाँ तक सिर्फ एम्प्लॉय आ गए हैं, काम नहीं किया अभी तक उन्होंने, but they cannot commence their job until they are not informed about what to do, हाउ टू डू। ठीक है, एम्प्लॉय आए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, अभी उनको बताना पड़ेगा ना क्या काम करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। द मैनेजर परफॉर्म ऑल दिस जॉब थ्रू द डायरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको डायरेक्शन जरूरी है। ठीक, दस इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ अ डायरेक्शन विच आर इनिशिएटिव इन द एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्शन एक फर्स्ट स्टेप है जिसके थ्रू एम्प्लॉय अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। It integrates the employees' effort. Many employees work in an organization. The activities of all are correlated. Integrate employee efforts का मतलब क्या होता है? देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक सब एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, जब तक सबका काम एक साथ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होने वाला है, राइट। सो डायरेक्शन में ही ये भी होता है कि वो सारे वर्क को एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए कैसे, the success of an organization is possible only when everybody does their job efficiently. If any one of the employees in the employee chain does not perform up to the mark, it adversely affect the performance of the remaining employee. Thus, it is essential to establish the coordination among all the activity. The manager establishes this coordination by supervising, providing the good leadership, motivating, exchanging ideas with his subordinate. अब आपके बोर्ड एग्जाम में 5 to 6 सब्जेक्ट होते हैं, आप किसी 3 ही सब्जेक्ट को पढ़ते जा रहे हो, बाकी 2-3 सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर रहे हो। डू यू थिंक बोर्ड एग्जाम आप मेरिट के साथ पास हो पाएंगे? माय डियर स्टूडेंट, मेरिट तो दूर की बात है, पास भी नहीं हो पाओगे आप, क्योंकि आपका डायरेक्शन ही गलत जा रहा है। बोर्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए 5 और 6 वॉट एवर आपने सब्जेक्ट लिया है, सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? डायरेक्शन के थ्रू क्या होगा, सुपरविजन मिलेगा, ताकि आप अपने 5 और 6 सब्जेक्ट जो भी है उनको इंटीग्रेट कर पाओगे। और जब आप 5 या 6 जो भी आपने लिया है सब्जेक्ट क्लियर आउट करोगे, तभी आप मेरिट लिस्ट के बन सकते हो। अदरवाइज अगर आपने 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया, इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे थे वो तीनों में 100 आउट ऑफ 100 फुल आ भी गए, तब भी आप फेल हो जाओगे, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट आपने देखा ही नहीं।
तो इसीलिए क्या कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम को पास करने के लिए जैसे सारे सब्जेक्ट क्लियर करने जरूरी, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2-3 डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 2-3 डिपार्टमेंट ने अभी तो काम ही शुरू नहीं किया, तो वहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको सुपरवाइज और उनको गाइड करने के लिए, ताकि जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम एक साथ कंप्लीट होंगे तभी जाकर के ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन लगता है। नेक्स्ट है, इट इज़ द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्शन कोई एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअली एक तरह का मोटिवेशन है, एम्प्लॉय को पुश करता है, करेज करता है, इंस्पायर करता है, ताकि वो अपने काम को जैसे कर रहे हैं उससे और अच्छे तरीके से कर सके। ठीक, नेक्स्ट कह रहे हैं, इट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनवायरमेंटल की वजह से कई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो चेंजिंग को भी एडजस्ट करने के लिए हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्शन के थ्रू हम लोग चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ एन ऑफिसर टाइपराइटर आर रिप्लेस बाय कंप्यूटर, तो आपको क्या लगता है कि जिन एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा था, कंप्यूटर इन्वेंशन होने की वजह से आप उन सबको निकाल देंगे और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उन सबको अपॉइंट कर लेंगे। डू यू थिंक ये इतना आसान होता है? नॉट एट ऑल, ये इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो ऐसा अगर कोई सिचुएशन होता है तो एक काम करिए ना, डायरेक्शन के थ्रू अपने एम्प्लॉय जो टाइपराइटर यूज़ कर रहे थे उन्हीं को कंप्यूटर यूज़ करने का ट्रेनिंग दीजिए, डायरेक्ट कीजिए, डायरेक्शन दीजिए, ताकि वो भी बेटर वे में इसको यूज़ कर सके। देन द टाइपिस्ट हु डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल डेफिनेटली शो द रेसिस्टेंस टू दिस चेंजेस। द रीजन फॉर दिस रेसिस्टेंस इज द फियर ऑफ द लॉसिंग जॉब। मैनेजर थ्रू द इफेक्टिव डायरेक्शन मेक देम अ पार्ट ऑफ द चेंज प्रोसेस। तो क्या होगा, उसके मन में एक डर रहता है कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता, मैं टाइपराइटर तो यूज़ कर रहा था। तो वो क्या करेगा पता है, डायरेक्शन ले करके सुपरवाइज़र से पूछ करके कंप्यूटर को भी प्रॉपर वे में चलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी वर्क में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, इट क्रिएट द बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो दो लोगों से मिला हुआ है, एक एम्प्लॉय और एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इटसेल्फ, ठीक। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव ना अलग अलग होते हैं। ये एम्प्लॉय और उसके ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो दोनों एक साथ नहीं दिखते। जनरली आपने देखा होगा हेड टेल एक साथ दिखता है एक ही सिक्के में, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है, राइट, अपोजिट में दिखाई देते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, लेकिन पता है आपको, हेड और टेल जब तक एक साथ ना हो तब तक सिक्के की वैल्यू जीरो होती है। तो वैसे ही जब तक एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन एक साथ ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी वैल्यू भी जीरो है। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो डायरेक्टिंग हेल्प टू सेटल दिस channel to create the balance in the organization. On the one hand, a person working in an organization for the fulfillment of his objective like high salary, promotion, etc. On another hand, the objective of the company can do the higher profit, move market share, etc. A manager through the direction tell the employee how they will fulfill their objective. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय कुछ और चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और चाहते हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कंपनी, जब तक एम्प्लॉय उसकी अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक एम्प्लॉय जब तक एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना हाई प्रॉफिट अचीव नहीं कर पाएगा, मार्केट शेयर वैल्यू कभी नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे ही जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, ऑब्वियसली एम्प्लॉय की ना सैलरी बढ़ेगी ना उनका प्रमोशन होगा। तो डायरेक्शन के थ्रू क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने काम को प्रॉपर वे में कर सकें, ठीक है, जिससे उनका भी गोल अचीव हो और उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल फटाफट अचीव हो सके, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल हम लोग देखेंगे एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग। टिल दैट इफ़ यू हैविंग एनी डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन द इवनिंग शेड्यूल और बी रेडी विद द टेस्ट, ओके। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।